Dosto, welcome to MA TV Studios. My name is Sathi Ludhianvi and the program's name is Sathi Ke Sang Sang. اور آپ کو پتہ ہے کہ every week we come here and we bring two poets with us. Last week there were Punjabi poets and the previous week there were Gujarati poets and before that there were Hindi poets and so on. تو آج ہمارے پاس جو پوئٹ ہیں وہ ہیں اردو کے پوئٹ. دے آر پرومیننٹ پوئٹس ایکچولی جو یہاں میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں ہیں. تو ایک تو ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں, پروفیشن از ایجوکیشنسٹ ہیں وہ ہیں محترمہ فرحت خان. تو محترمہ فرحت خان جو ہے ریڈنگ میں رہتی ہیں اور جب یہ آئی تھی 1992 شی یوز ٹو لیو ان یارکشائر اور جہاں کی جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث رہتی ہیں ہر دفعہ. اور پچھلے 2 ہفتے ہوئے ایک مشاعرہ ہوا تھا ریڈنگ میں جن میں آپ نے مطلب اس کی نظامت کی ہے. جی جی. اور اسٹیج سیکرٹری جسے کہتے ہیں وہ یہ تھی اور بہت اچھا مشاعرہ تھا لیکن انفارچونیٹلی آئی کوڈنٹ اٹینڈ بیکاز آئی واز گوئنگ سم ویئر. تو سب سے پہلے ان کو ہم سلام آداب کہتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. جی آپ نے ابھی مشاعرے کا ذکر کیا کہ ریڈنگ میں مشاعرہ ہوا تھا اور اس کی نظامت میں نے کی تھی اور جب مجھے فہرست ملی اس میں آپ کا نام بھی تھا کہ آپ بھی متوقع ہیں. اور خصوصی بات یہ تھی کہ میں نظامت جب کرتی ہوں تو جو شاعر لوگ آنے والے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کے ذوق اور شوق کے ترجمانی کرتے ہوئے میں ان کی شان میں استقبالیہ اشعار لکھتی ہوں جو مجھے ان کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے میں ان کی نظر کرتی ہوں اور وہ ان کی شخصیت کی عکاسی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ان کے اسٹیج پر آنے سے پہلے سامعین اور ناظرین جو ہوتے ہیں ان کو کافی تر ان کے بارے میں تعارف مل جاتا ہے میرے اشعار سے کہ وہ کس طرح کے شاعر ہیں اور کس ذوق و شوق کے وہ شاعر ہیں. اور اس بات کے لیے یہ انفرادیت میری نظامت میں سب نے بہت پسند کی تھی. اور کیونکہ آپ وہاں آنے والے تھے اور نہیں آ سکے تھے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے, لیکن میں نے آپ کے لیے جو آپ کے ذوق اور شوق اور آپ کے معیار شاعری کے مطابقت سے میں نے آپ کے کو مدعو کرنے کے لیے جو اشعار کہے تھے وہ ادھار ہیں, طرز ہیں, اور وہ طرز میں آج یہاں ادا کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے لیے کیا کہا تھا کہ ذوق اعلیٰ خیال ہیں ساتھی, ذوق اعلیٰ خیال ہیں ساتھی, شاعری میں کمال ہیں ساتھی, شاعری میں کمال ہیں ساتھی, ان کی عظمت ہے ان کے شعروں میں, شخصیت بے مثال ہیں ساتھی, شخصیت بے مثال ہے ساتھی. آپ کی نظر آپ کا قرض میں نے یہاں ادا کر دیا کہ یہ میں نے آپ کے لیے کہے تھے لیکن یہ میرے اوپر واجب تھا کہ میں آپ کی موجودگی میں اور بلکہ اب تو اس وقت سبھی سامعین اور ناظرین کی موجودگی میں یہ میں نے آپ کے حوالے آپ کے اشعار بہت اچھا ہوا کہ آپ نے سبھی کو سنا دیا. بہت بہت شکریہ. تو دوسرے ہمارے پاس جو شاعر ہیں اردو میں لکھتے ہیں, ہندی میں لکھتے ہیں اور پنجابی میں لکھتے ہیں, لیکن اردو میں جو ان کی شاعری ہے ایٹ لیسٹ مجھے بہت پسند ہے اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور پوچھیں گے کہ کیوں بھائی اردو میں آپ کیوں لکھتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب وین دس تھنگ ہیپن پارٹیشن ہیپن ان 1947 تو اردو آئی ریئلی لوڈ اردو بٹ آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اس کے بعد اردو ہمارے یہاں بند کر دی زبان. لیکن اس کا جو لاس ہے آئی اسٹل فیل کہ اردو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی زبان ہو اس سے زیادہ سے زیادہ سیکھنی چاہیے. تو یہ ہیں جناب سری رام شرما میت جی اور آپ سلو میں رہتے ہیں. بہت شاعری خوبصورت آپ کرتے ہیں. شکریہ. لیکن ابھی تک آپ کی کوئی کتاب نہیں چھپی, اس کے بارے میں پھر بعد میں کریں گے. لیکن کتاب چھپنی یا نہ چھپنی کوئی ضروری بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے بہت سی شاعری کی ہے, آپ کے پاس ہے, کبھی بھی چھپ سکتی ہے. تو آپ شرما جی آپ ہندی میں آپ کے پاس ڈگری ہے اینڈ پنجابی میں بھی ہے آپ کے پاس, اردو بھی سیکھی آپ نے. جو اتنی زبانیں ہیں اس میں آپ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں, ہندی میں کہتے ہیں کہ پنڈت ہیں اس میں. تو کون سی ان تینوں زبانوں میں آپ محسوس کرتے ہیں مور ایزی ٹو رائٹ ان؟ اصل میں ساتھی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے یہاں آنے کا آپ نے موقع دیا. میں
अपने मुंह तो अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, तीनों ज़बानें मुझे अजीज़ हैं और तीनों ज़बानों की कदर मेरे दिल में एक जैसी है। पंजाबी तो मेरी मादरी ज़बान है जिसमें मेरी माँ ने मुझे लोरियां दी और वो लोरियां मेरे खून के साथ अंदर गई, इसलिए वो मुझे बेहद अजीज़ है। और उसके बाद मुझे लाजमन ऑनर्स करनी पड़ी हिंदी की, तो वो मैंने हिंदी की ऑनर्स की। और उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने लफ्ज़ यूज़ किया लाजमन करनी पड़ी, क्यों लाजमन करनी? वो लाजमन इसलिए करनी पड़ी कि मुझे कहा गया था कि भाई आप टीचर बनना चाहते हैं तो पंजाबी आनी चाहिए। पंजाबी नहीं आनी चाहिए, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें आप ऑनर्स हों। ओके, ऑलराइट। तो या तो आप पंजाबी के ऑनर्स ज्ञानी बन जाइए, या आप बन जाइए प्रभाकर। तो मैंने फिर वो ऑनर्स इन हिंदी की, और ऑनर्स हिंदी करने के बाद मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली वो ट्रेंड ग्रेजुएट का ग्रेड मिल गया। I see. So that was the reason behind That was the reason behind it. क्योंकि और आप, साथी जी उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो मैंने बचपन से ही आरंभ में, मतलब शुरू में ही मैंने अलिफ बे से शुरू किया। 1936 में जब मैं 5-6 साल का था, तो जब मुझे वहाँ स्कूल में भेजा गया तो अलिफ बे पढ़ा। अलिफ बे के बाद उसके बाद ये हमारी खुशकिस्मती सी कि हमें जो उस्ताद मिले उर्दू पर्शियन के, मुख्तार हुसैन नाजिर साहब थे, वो थे यूपी के, और हम थे पंजाबी जालंधर में। तो वो हम उनको उर्दू के पीरियड में भी पंजाबी में क्वेश्चन करते थे और हमें उर्दू बोलने में हिचकिचाहट थी। तो उन्होंने एक कानून बना दिया कि जो स्टूडेंट मुझे पंजाबी में सवाल करेगा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। तो हमने तो सवाल करना ही छोड़ दिया। क्योंकि ये जो बात है, आपने बड़ी बढ़िया बात की कि हमारे यहाँ वहाँ, क्योंकि उर्दू अगर आपकी ज़ुबान नहीं है तो ज़ाहिर तौर पर आप नहीं बोलेंगे क्लास में भी, जब टीचर में। यही चीज़ अंग्रेज़ी में थी, क्योंकि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, यू नो, क्योंकि जो द पर्सन हु वाज टीचिंग अस, ही वाज ए पंजाबी एंड वी वर पंजाबीज एंड वी टेंड टू स्पीक इन पंजाबी, एंड आवर प्रोफेसर, our teacher used to tell us straight away, he says, as soon as you enter the store you got to speak in English. आप क्योंकि आप भी पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, पंजाबन जिन्हों कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो लाहौर में पैदा हुई और पंजाबी, ज़ाहिर है माहौल पंजाबी था, लेकिन घर में उर्दू का माहौल था। और बताती चलूँ कि मेरे वालिद नफीस अहमद सिद्दीकी मरहूम शायर थे और मेरी वालदा राबिया सिद्दीकी, अच्छा, वो शायरा थी। सो घर में शायरी का माहौल था। घर में शायरी का इस कदर माहौल था कि बातचीत भी शायरी में हुआ करती थी। वाह। और इवन कि हमारे वालिद और वालदा आपस में जो है फिलबदी अशार कहा करते थे, तो वो फिलबदी अशार का माहौल था। और मेरे वालिद साहब को नातिया कव्वालियों का भी बहुत शौक़ था, तो वो अपने घर में महफिल मुनक़्क़िद कराया करते थे कव्वालियों की। तो जब कव्वालों को पता चलता था कि इस पर सिद्दीकी साहब बहुत नवाज रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो वो उसी शेर पे रात बिता देते थे। क्या बात है। और उनकी झोलियाँ जो हैं वो भर जाती थी। सो जैसे बाप ऐसी बेटी। तो फिर अम्मी जान ने महसूस किया कि ये तो बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, और तो फिर उन्होंने कहा कि अम्मी जान ने एक फिलबदी कथा कहा जो मुझे आज भी याद है कि जो कुछ कमाया आपने कव्वाल ले गए, अशकन पजामा रेशमी रुमाल ले गए, चेहरे पे माथे पे अब जुल्फ़े परेशान भी नहीं है, आईना देखिए सभी वो बाल ले गए। अच्छा। तो ये कथा अम्मी जान ने फिलबदी कहा और उस पर अब्बू जी ज़ेरे लब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब हम इसको कम कर देंगे ताकि एक म्याना रवि इख्तियार की जाए, ताकि ज़्यादा पैसा जो है एक ही चीज़ पर ज़्यादा सरफा ना किया जाए, ज़्यादा स्पेंड ना किया जाए। तो इसलिए फिर वो इस तरह से बातचीत हुआ करती थी। और फिर जब मैं 7 साल की थी, उस वक्त में मेरी 7वीं बर्थडे था और मेरी नानी मेरे लिए गुड़िया लेकर आई और मैंने उस गुड़िया का नाम रानी रखा। उसी रोज़ महफिल में सबके सामने मैंने उस गुड़िया का नाम रानी रखा और कहा, पहला शेर कह दिया फिलबदी कि मेरी गुड़िया का नाम रानी है, नानी अम्मा की ये निशानी है।
वाह। तो उस बात देखो पर जी, इनको याद भी है। हाँ। जी, वो मुझे पहला अपनी ज़िंदगी का पहला शेर बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, जिस पर मेरे अब्बू जी बेहद खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि मुबारक हो, मेरी अम्मी जान को कहा कि आपको बहुत मुबारक हो कि फहद बेटी में हमें वो वस्फ नज़र आया है कि इनमें वो रंग नज़र आ रहा है कि खुदादा सलाहियत इनमें है। तो इनके घर में तो वो माहौल ऐसा ही था दरिया बहता था। कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि शी इज़ आल्सो ए पोइट, बिकॉज जो एनवायरनमेंट होती है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। तो आपके घर में भी ऐसी? मेरे घर में ऐसा माहौल तो नहीं था, मेरे घर में तो साहूकारा था, इसलिए वहाँ तो अदब का नाम निशान नहीं था। लेकिन मैं हसास था ज़रूर। मैं जब किसी को दुखी देखता था तो मेरा दिल रो उठता था। तो मेरा जो पहला मैंने शेर लिखा था वो किसी एक लड़की को, गरीब लड़की को, जिसके जिस्म पर चीथड़े थे, वो कूड़ा करकट में से गेहूं के दाने बिनती हुए देखा था। उसके बारे में वो शेर याद तो है? वो मैंने वो पंजाबी में था। हाँ जी, कहिए। कि वो ये था साथी जी कि विच आज़ादी मैं की डिठा भुख नमाणी खून सताउंदी, पैसे वाले मौजां करदे लाल प्याले दौरी घुमण। वाह, मैं डिठा अल्लड़ कुड़ियां चौड़े चेड़े मोटी डाली उड़दी छाती सिर तो नंगियां पैरी छितर पेटों भुखियां बिच बाजारां इज्जत बेचण। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये उस ये वक्त आपका मैंने भी जो घर का जो माहौल था तकरीबन मेरे जैसा ही था, क्योंकि हमारे घर में भी कोई अदबी लोग नहीं थे। हाँ। दे वर एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, और गुरबानी को प्यार करते थे, कविता को भी प्यार करते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो माहौल ऐसा नहीं था कि वन शुड स्टार्ट राइटिंग। मेरे जो बड़े भाई थे, ही यूज्ड टू लव माय पोइट्री व्हेन आई वाज वेरी यंग। मुझे याद भी नहीं है कि पहली नज़म मैंने कब कही थी, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आप पर तारी होती है, ये नज़में जो होती हैं। जी जी। तो आप कोई उर्दू की कोई चीज़ सुनाइए आप, ताकि जो हमारे जो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं हमारे, मैं जो एक व्यूअर्स हैं, वो देख सकें कि आप क्या लिखते हैं। देखिए, मैं एक दुआया नज़म से शुरू करता हूँ जी। कि सभी से सुना तू है मौजूद हर जा, तुझे देख पाऊँ मुझे वो नज़र दे। वाह वाह। सभी से सुना तू है मौजूद हर जा, तुझे देख पाऊँ मुझे वो नज़र दे। मैं उस बशर पर अपना सब कुछ लुटा दूँ जो तेरे ठिकाने की मुझको खबर दे। वाह वाह, वाह खूब। मैं उस बशर पर अपना सब कुछ लुटा दूँ जो तेरे ठिकाने की मुझको खबर दे। सवाली तेरे दर से जी भर के पाएं, मेरे जैसे फिर क्यों तही दस्त जाएं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और बहुत भटका हूँ दर बदर जा बजा मैं, मुझे मेरा दे चाहे मिट्टी का घर दे। वाह मुझे मेरा दे चाहे मिट्टी का घर दे, तुम्ही ने ज़मी आसमां हैं बनाए, फलक पर मेहर माहो अंजम सजाए। ए खालक रहीमा करीमा करम कर, मेरे शजरे दैरीना पर भी समर दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी। और एक शेर और हो जाए। एक शेर अर्ज करता हूँ कि मेरी चाहतें आरज़ुएं दुआएं हूँ बहबूदिए इब्ने इंसान की खातिर। मेरी चाहतें आरज़ुएं दुआएं हूँ बहबूदिए इब्ने इंसान की खातिर, तो सब खानादारों के घर में खुशी दे, थके मीत के घर सहन में शजर दे। वाह वाह। बहुत अच्छा जी, बड़ी प्रोग्रेसिव थॉट्स तो हैं ये आपके। दुआया है। तो शायरी का दरअसल जो मंतब होता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में मंतब कहते हैं, निशाना होता है, जो जी। एम होता है, वो यही होता है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, सर्व द पीपल। आई थिंक दैट्स व्हाट यू डू। बेशक। तो आप का मैं जो बायोडाटा तो बहुत लंबा चौड़ा है, आप यू आर वेरी हाईली एजुकेटेड, और एक्चुअली यू आर एन एजुकेशनिस्ट। जी बेशक। तो 1983 और 1991 में आपने यू वर्कड एज अ हेड टीचर इन लाहौर पाकिस्तान एट ओरिएंट पब्लिक स्कूल। तो 1992 में आप यहाँ आ गई और हैलीफैक्स यॉर्कशायर में आप लैंग्वेज स्पोर्ट टीचर रहीं। जी बिल्कुल। और स्कूल जो है और उर्दू की कॉल- टीचर ज़्यादा तौर पर जो कॉल्डरडेल हाई स्कूल में भी जी आप कॉल्डरडेल हाई स्कूल में भी मैं रही, और इसके अलावा मैंने डिफरेंट स्कूल्स में काम किया लैंग्वेज सपोर्ट के लिए, कि जो जहाँ लैंग्वेज के को हम जो न्यू कमर्स आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, अच्छा, उनको तो उनके साथ उनको लैंग्वेज में सपोर्ट करती थी। और इसके अलावा उर्दू GCSE और A levels को मैंने उर्दू भी पढ़ाया है, और उर्दू की बहुत खिदमत की है मैंने इस जी, कंट्री में आके। बेशक, और ये yes। मैं तब से करती आ रही हूँ जब मैं खुद स्कूल में थी। जब मैं अपने स्कूल में थी, और उस वक्त में जब मेरी हेड टीचर को मालूम था कि मैं शायरी करती हूँ, तो तब उन्होंने मुझे
कोई भी स्कूल का प्रोग्राम होता था, कोई भी ओकेजन होती थी, कोई टीचर आ रही हैं, किसी का फेयरवेल है, कोई स्कूल की गोल्डन जुबली हुई, तो हर चीज़ के लिए वो मुझे कहती थी कि अब ये मौका आ रहा है, अब इस मौके पे नज़म होनी चाहिए। और मैं स्टेज पर और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ बचपन से ही। उसके अलावा मुझे स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम में स्कूल की तरफ को स्कूल को रिप्रेजेंट करती रही, और बच्चों के प्रोग्राम में जो रेगुलर एवरी संडे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होता था, वो मेरे बगैर नामुकम्मल होता था। That's very good. That's very good. एग्जाम्स करीब होते थे, तब भी वो लोग कहते थे कि फरहत आपको आना होगा। हाँ, तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो लड़कियां हैं उनको मतलब एजुकेशन एक प्रायोरिटी नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत दुख की बात है। अगर मैं तो ये कहती हूँ कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तालीम बेहद ज़रूरी है। लड़कियों की तालीम इस कदर ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की ने कल चलकर एक माँ बनना है, एक घरदारी संभालनी है, एक पूरे ख़ानदान को तैयार करना है, और एक पूरे घराने को तरबियत देनी है। तो अगर वो ही तालीम याफ्ता नहीं होगी तो पूरी अगली नस्ल जो है वो पढ़ लिख भी जाएगी तो भी उसमें एक कमी रह जाएगी, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट ने कहा था वो शमादर से शुरू होती है तरबियत और तालीम, उसका कुछ और ही होता है असर। तो हमारे वालिदैन तालीम याफ्ता थे, उन्होंने, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि we are talking about the girls and women जो पुअर घरों से है, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। बिल्कुल, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बने जो, और फंडिंग होनी चाहिए, और उनके लिए तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। और कुछ ऐसे भी हैं, अभी तक कुछ ऐसे मज़ाफ़ात हैं, दूर दराज के मज़ाफ़ात हैं जहाँ पर स्कूल बहुत कम हैं या प्राइमरी लेवल तक हैं, मिडल या हाई नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो बहुत दूर हैं। और तो उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मुखालफत करते हैं कि लड़कियों को करते हैं? मैं वही कहने वाली थी कि जो मुखालफत करते हैं उनके लिए मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह उनको अक्ल दे, कि उनको ये वक्त की ज़रूरत से वो रूशनास रहें कि वक्त क्या, अब ये इस 2014 ये कोई जी वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि कम से कम तालीम जो है उसको आम होना चाहिए, और स्पेशली लड़कियों की तालीम तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो मलाला यूसुफज़ई का जो, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल आर्गूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन शी इज़ अपहोल्डिंग द कॉज ऑफ द एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। जी, बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत अहम कदम है, चाहे वो कोई भी आगे आ जाए इसके लिए। हाँ जी, ठीक है। इसकी क़यादत करने के लिए कोई भी कदम बढ़ाए, ये सभी। तो आपने भी वही बातें कही हैं जो वो कह रही है। जी बिल्कुल, आप भी वही कह रहे हैं। तो आप कोई ऐसी चीज़ है जो इसके बारे में, चलो कोई बात नहीं, जो भी आपके सामने है वो सुनाइए। मेरे तो अल्फाज मेरे दिल से मोहब्बत में का एक जो है ना तूफ़ान सा उठता है, और मेरे अशार में भी वही होता है। और इसके लिए एक मेरा पता है कि मोहब्बत मेरे शेरों में अगर तहलील हो जाए, वाह वाह, मोहब्बत मेरे शेरों में अगर तहलील हो जाए, मेरी तहरीर की तामीर की तकमील हो जाए, वाह वाह वाह, मेरी तहरीर की तामीर की तकमील हो जाए, वाह। रोज़ा हो तख़य्युल से उजाला इस तरह फरहत, रोज़ा हो तख़य्युल से उजाला इस तरह फरहत, कलम से लफ्ज़ जो निकले वही कंदील हो जाए, कलम से लफ्ज़ जो निकले वही कंदील हो जाए, मोहब्बत मेरे शेरों में अगर तहलील। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। तो मीर साहब, आपने भी कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो? देखिए, मैं अभी आपको सुनाई देता हूँ कि आ मेरे हमराज बाहम प्यार की बातें करें। वाह। आ मेरे हमराज बाहम प्यार की बातें करें, सोए साजों को जगा झंकार की बातें करें, और जिससे पाकर रोशनी रोशन हुए हैं मेहरुमा,
जिससे पाकर रोशनी रोशन हुए हैं मेहरो माँ, क्यों न हम उस माल के अनवार की बातें करें। क्या बात है, क्या बात है। क्यों न हम उस माल सुभान के अल्लाह, वाह। अनवार की बातें करें। हाँ। और ये अर्ज करता हूँ कि जो जगा दें जज्बाए उल्फत दिले इंसान में, वाह, जो जगा दें जज्बाए उल्फत दिले इंसान में, आके उन गज़लों की उन अशआर की गज़ले दुश्वार की बातें करें। और तू मसीहा ए ज़माना ही सही पर यार आ, तू मसीहा ए ज़माना ही सही पर यार आ, आदमी के रंज की अफकार की बातें करें, गर करें बातें तो बस बहबूदी इंसान की, ना करें अपनों की ना अगयार की बातें करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। कि गर करें बातें तो बस बहबूदी इंसान की, ना करें अपनों की ना अगयार की बातें करें। तो मगता है कि कौन कहता है कि तू है नातवा ना अहल है, मीत भंवरों से निकल उस पार की बातें करें। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। तो वो मलाला यूसुफजई की बात कर रहे थे, तो जिस दिन वो बर्मिंघम में आई, जी हाँ। तो मैंने उस दिन कुछ शेर लिखे थे, वो रेडियो पर भी मैंने ब्रॉडकास्ट किए थे। तो बहुत से दोस्तों ने, लेकिन हमारे पास वो अब ब्रेक का टाइम आ गया है। अच्छा। इट ऑलवेज हैपेंस व्हेन आई एम गोइंग टू डिसाइड समथिंग। ब्रेक के बाद हमें बिल्कुल बता दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं जनाब शर्मा मीत जी, श्री राम शर्मा मीत जी। हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखते हैं, और उर्दू की बुलंद शायरा बहुत शुक्रिया। मोहतरमा फरहत खान जी हमारे साथ हैं। और ब्रेक के बाद आपके और मेरा मिलन और इनका मिलन होगा आपसे। दोस्तों, वेलकम टू MATV स्टूडियो अगेन, एंड प्रोग्राम का नाम है साथी के संग संग, और मेरा नाम है साथी लुधियानवी, एंड आई गॉट टू प्रोमिनेंट उर्दू पोइट्स। दे आर मोहतरमा फरहत खान और मिस्टर श्री राम शर्मा मीत। इनसे आज बातचीत हो रही है, इनकी शायरी सुन रहे हैं। तो मैं वो सुनाने वाला था, अपनी जो नज़म जी थी बिल्कुल, मैंने वो पंजाबी में लिखी है। बेशक पता कीजिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ, जी जरूर, ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ। इरशाद, ਬੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। बेशक। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, वाह वाह ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह वाह जी वाह, वाह। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ, ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह वाह, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ, ਰਹੇਗੀ ਹਰਦਮ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ। हाँ, थोड़ी माला या वाह। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਲਿਖਣੋਂ, ਰਹੇਗੀ ਹਰਦਮ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ। ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह। वाह। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, हम्म ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੌਤੋਂ ਮੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿ ਲਾਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह बेशक। बिल्कुल। ਚਿੜੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, वाह ਚਿੜੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੜੀ ਮਲਾਲਾ। वाह, क्या बात है। ਕਿ ਚਿੜੀ ਹੈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੜੀ ਮਲਾਲਾ। ਕਿ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। कुड़ी मलाला, वाह। जो मर्दों ਜੋ को करना। ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਮਲਾਲਾ। ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਐਨ फ्रैंक है, एन फ्रैंक दी जो डायरी है ना, आपको पता होगा कि उसमें वो डायरी लिखती थी, एन फ्रैंक जो थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये भी डायरी लिखती थी। को दोनों का एक हो गया ना वो, कि पाकिस्तान दी एन फ्रैंक है, डायरी लिखती कुड़ी मलाला। कुड़ी मलाला, अच्छा। पाकिस्तान दी एन फ्रैंक है, डायरी लिखती कुड़ी मलाला। कि पाकिस्तान ने ਧੀਆਂ जम्मियां, हम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, पाकिस्तान ने कुड़ियां जम्मियां, बेनज़ीर ते कुड़ी मलाला। कुड़ी, वाह, क्या बात है। पाकिस्तान ने ਧੀਆਂ जम्मियां, बेनज़ीर ते कुड़ी मलाला। तू कल्ली नहीं तेरे संग है, तू कल्ली नहीं, मकता है, तू कल्ली नहीं तेरे संग है, साथी दुनिया जुड़ी मलाला। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो कुछ ऐसा होता है, आपको तो पता है, आप तो शायर हैं, कि जब ऐसा कोई आप मंजर देखते हैं
तो शायरी अंदर से निकलती है, और दिल से निकली हुई दिल तक पहुंचती भी जरूर पहुंचती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ था तो आई वॉज वॉचिंग द टेलीविज़न, तो मैंने देखा, आई मीन एवरी डे जस्ट बिफोर हिज डेथ, कि इतनी खूबसूरत और बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की औरत जो है वो जिस तरीके से पेश आ रही थी कैमरे के सामने एंड एवरीथिंग, मैंने सोचा कि पाकिस्तान जो है इज़ लकी टू हैव हर। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन शी वाज गन डाउन, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। बैड लक। ये हम अब पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे कि उनकी पॉलिटिक्स क्या थी, अब क्या है या क्या है, सिंपली एक ह्यूमन बीइंग का जी। इंसानी कत्ल जो है वो तो आप ਲਾਹੌਰਨ हैं जी बिल्कुल ਲਾਹੌਰਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ देखो ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬੀ जो है ना जी जी वो बोली जाती है अमृतसर में और लाहौर में। बेशक जो हमारे जो लुधियाने वाले हैं, जलंधर वाले हैं ना, जी जी ये इनकी कोशिश होती है कि वैसी ही पंजाबी बोली जाए, पंजाबी बोली जाए जैसे अमृतसर और लाहौर में बोली जाती है। बेशक तो आपने कभी पंजाबी में लिखा? जी पंजाबी में भी मैंने लिखा है, जी। और मेरी पंजाबी गज़ल है कि जो रो रो मेरियां लंगियां ने, हाँ जो रो रो मेरियां लंगियां ने, ओ घड़ियां लखां सदियां ने। वाह 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 वाह। जो रो रो मेरियां मेरियां लंगियां लंगियां ने, ने, ओ घड़ियां लखां सदियां ने। हाँ। इंज जापे चढ़ी है सावन दी, इंज जापे चढ़ी है सावन दी, ए जद भी छम छम वसियां ने, वाह वाह वाह। ए जद भी छम छम वसियां ने। हाँ। सुख सांद कोई ना सजना दी, हाँ। सुख सांद चांद कोई ना ना सजना सजना दी, दी। दुखाने रावा मलिया ने, वाह वाह। दुखाने रावा मलिया ने। हाँ। तू लख पर दे पई पापर, हाँ। तू लख पर दे पई पाफरत। पापर, अज बोलन तेरियां अखियां ने, हाय हाय हाय। अज बोलन तेरियां अखियां ने। बहुत जो खूबसूरत। रो रो मेरियां लंगियां ने, ओ घड़ियां लखां जिंदाबाद। सदियां। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि 15 मिनट लेट शुरू हुआ था, इसलिए आज का प्रोग्राम इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 10:45, तो 15 मिनट और ज़्यादा हम कैमरे के सामने रहेंगे। तो श्री राम शर्मा जी, आप कोई अपनी एक गज़ल या कोई ऐसी चीज़ सुनाइए जिसमें जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं हमारे देशों में उनकी तर्जमानी हो, उसमें कोई है ऐसी कोई? देखिए ऐसा है असल में, अगर आपको निकालनी पड़ रही है तो जो आपके सामने है नहीं हाँ वो निकालनी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा हाँ जो मैंने निकाली हुई है जी, जी। वो मैंने इंडिया पाकिस्तान के आपस में फ्रेंडशिप के बारे में ओके यस। मेरे ख्याल में वो भी जैसा मैं समझता हूँ तो मैं शुरू करता हूँ। जी, अच्छा। तो उसका मतलब है कि आओ देखें आजमा कर बरकतें अब प्यार की, आजमा बैठे हैं ताकत तोप की तलवार की। वाह 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 वाह। आओ देखें आजमा कर बरकतें अब प्यार की, आजमा बैठे हैं ताकत तोप की तलवार की, दोनों ही सहनों को देंगे चांद सूरज रोशनी, कम अगर कर लें ऊंचाई बीच की दीवार की। वाह। और दोनों हमसाए रहें मिलजुल के भाइयों की तरह, हो मुबारक निगहबानी अमन के गुलजार की, दोनों भाइयों की आवाज़ें हो के मुश्तरका उठें और अमन उल्फत सुर्खियाँ बन जाएं हर अखबार। बहुत अच्छा मैसेज है ये, बहुत बढ़िया मैसेज है जी आपका। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे फदर जी, हमारा जो इंडिया है, पाकिस्तान है, एक ही थे और अंदर से एक होने चाहिए। बिल्कुल बहुत, क्योंकि देखो क्योंकि सब हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफात नहीं है, हमारा रहन सहन, हमारी ज़ुबान है, हमारी ज़ुबान, हमारा पहरावा रंग एक, रूप, हम सब एक हैं, बल्कि हम एक ही थे और एक ही हैं। और ख़ास तौर पर इस मुल्क में तो हम बिल्कुल भी कोई भी डिफरेंस नहीं करते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मैं तो बस मोहब्बत की पुजारन हूँ और सबको साथ लेकर चलने वो वाली हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो इंडिया से आए, बहुत सालों की बात है, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, करतार सिंह दुग्गल। वो पाकिस्तान में रेडियो डायरेक्टर थे और इधर फिर दिल्ली में डायरेक्टर रहे, तो यहाँ मेरे घर आए तो कहने लगे भाई लंदन में आके तो ये लगता है जैसे वो ज़िंदगी पहले थी इंडिया और पाकिस्तान की, वैसी ज़िंदगी यहाँ साथ रहना सहना बिल्कुल हम लोगों में तो कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं है। हम तो बल्कि उन इख्तलाफात से दूर हैं और एक हैं। नहीं एक दिन वो इख्तलाफात भी अल्लाह ताला ख़त्म करे, हमारी दुआ है कि हम एक हैं और एक रहें। बिल्कुल।
सुनाइए कुछ अपना कुछ। जी ये 4 अशार हैं जी अच्छा। और बहुत शुक्रिया। नहीं है बात कोई भी मगर कुछ बात है फरहत, वाह। नहीं है बात कोई भी मगर कुछ बात है फरहत, बहुत चुपचाप सा दिन है अजब सी रात है फरहत, वाह वाह वाह। बहुत चुपचाप सा सा दिन दिन है है। अजब सी रात है फरहत, ना बादल है ना बारिश है ना ही इम्कान बारिश है, हाँ हाँ हाँ। ना बादल है ना बारिश है ना ही इम्कान बारिश है, फिजा गीली नहीं होती ये वो बरसात है फरहत, वाह। फिजा गीली नहीं होती हाँ। ये वो बरसात है फरहत, खुदा ने नेमतें बख्शी तो मुझको शायरी दे दी, वाह 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 क्या वाह बात है, वाह वाह क्या वाह। बात है। खुदा मुकर्र। खुदा ने नेमतें बख्शी तो मुझको मुझको शायरी दे दी, फने तख्लीक कारी भी हसी सौगात है वाह फरहत, वाह जी वाह। फने तख्लीक कारी भी हसी सौगात है फरहत, मेरी अम्मी मेरे अब्बू दुआएं अब भी देते हैं, वाह वाह। मेरी अम्मी मेरे अब्बू दुआएं अब भी देते हैं, मुझे खुशबू बताती है कि उनका साथ है फरहत, वाह बहुत बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह। फिर कहिए जे। मेरे अम्मी मेरे अब्बू दुआएं अब भी देते हैं, वाह वाह वाह। मुझे खुशबू बताती है हाँ। कि उनका साथ है फरहत, वाह। नहीं है बात कोई भी मगर कुछ बात है फरहत, बहुत चुपचाप सा दिन है सुभान अल्लाह। अजीब बहुत सी अच्छा। रात है, बहुत खूब बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मज़ा आ गया। तो जनाब मैं कुछ अर्ज करूँ। अच्छा जी देखिए फासलों को जीत कर पहुंचा सितारों पर जहां, फासलों को जीत कर पहुंचा सितारों पर जहां, फासला है किस लिए फिर तेरे मेरे दरमियां, वाह वाह वाह। कि फासला है किस लिए फिर तेरे मेरे दरमियां, है जहां पर मोल बिकती दिल की राहत दोस्तों, है जहां पर मोल बिकती दिल की राहत दोस्तों, कौन से कूचे में है कोई बताओ वो वाह वाह वाह। वाह वाह कौन से कूचे में है कोई बताओ वो दुकान, इस भरी दुनिया में हर एक महव ऐशो तरब है, कौन है जिसको सुनाऊं अपने दिल की दास्तां, बहुत कौन है जिसको सुनाऊं अपने दिल की दास्तां, मांग हरदम तू खुदा से खैर इस कश्ती की मीत, वाह। मांग हरदम तू खुदा से खैर इस कश्ती की मीत, रूठा रूठा है हवा से देख इसका बादमा। वाह बहुत खूब। बहुत खूब बहुत हाँ, शुक्रिया। तो दीवारों की बात चली है तो अपनी गज़ल के कुछ शेर मैं सुनाऊंगा। अच्छा हाँ, जरूर जरूर तो इरशाद। इंसान ने हर जगह उसारी दीवारें, वाह वाह इंसान ने हर जगह उसारी दीवारें, ईंट पत्थर की और खारी दीवारें, वाह वाह ईंट पत्थर की और खारी दीवारें, जो दीवारें अलग करें हमसाए, वाह जो दीवारें अलग करें हमसाए, वो हैं किस्मत की मारी दीवारें, दीवारें, वाह वो हैं किस्मत की मारी दीवारें, वाह अमीर गरीब नस्ल और मजहब, अमीर गरीब नस्ल और मजहब, कैसी अजीब है ये सारी दीवारें, सारी दीवारें, कैसी अजीब हैं ये ये सारी दीवारें, के बहुत रखो हर घर में खिड़कियाँ, बहुत रखो हर घर में हर घर में खिड़कियाँ, के बांटना किसी को ये भारी दीवारें, बारें, के बांटे ना किसी को ये भारी दीवारें, को इंसान ने हर जगह वो सारी दीवारें, ईंट पत्थर की और खारी दीवारें। वाह मैंने तुझे वैसे कह दिया लेकिन आपका प्रोग्राम है तो आपसे ही मैं सुनना चाहूँगा। तो जब उर्दू की बात करते हैं श्री राम शर्मा जी, जी हाँ, तो आपने उर्दू पढ़ी कितनी उम्र थी आपकी जब 1947 की पार्टीशन? मैंने जब 47 की उस वक्त मेरी 16-17 साल की उम्र थी। जी जी जी। और उस वक्त मैंने मैट्रिक पास कर लिया था उर्दू पर्शियन के साथ। हाँ हाँ। और उर्दू पर्शियन के साथ, और उसमें अगर इसमें कुछ गलत ना कहूँ तो मुझे 95% मार्क्स आए थे दोनों ज़बानों में, वेरी दोनों ज़बानों में। और मुझे मेरे जो उस्ताद थे मुख्तार हुसैन नाजिर साहब, वो बज़ाते खुद बड़े अच्छे शायर थे, और उन्होंने कहा था कि ये वो स्टूडेंट है जिसको उर्दू बोलने में झिझकिटाहट होती थी और आज कहाँ पहुँच गया। तो मुझे और उसके बाद फिर मैंने वैसे प्राइवेट BA पर्शियन के लिए मैंने
पंजाब यूनिवर्सिटी का दाखिला भेजा था, लेकिन चूंकि मैं टीचर था और उन्हीं दिनों जो इम्तिहान होना था, और उधर मेरे प्रिंसिपल ने हमारा ट्रिप रख दिया कलकत्ता का स्टूडेंट्स का, और मुझे इंचार्ज बनाया गया। तो आपने कहा तो कि मैंने आप वो बीए अपने जो बीए पर्शियन का स्टडी मैंने की, लेकिन मैं इम्तिहान में नहीं बैठ पाया, वो लेकिन इसलिए आपने स्टडी तो कर ली थी ना? हाँ स्टडी कर ली। तो आपने कहा कि आप यू वर 16-17 ईयर्स ओल्ड, आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा हंस रहा था, वो इसलिए कि लोगों को आपकी उम्र का पता चल गया, लेकिन लोग इसलिए भी खुश होंगे कि आपकी जो सेहत है माशाल्लाह, यू रियली लुक गुड। तो यू आर 80 ईयर्स ओल्ड, रफली 80 ईयर्स ओल्ड। आई एम ऑलमोस्ट 83 नाउ। तो आपको याद है कि आपकी जो पार्टी हुई थी बर्थडे की, उस दफ़ा मैंने एक जुमला कहा था, OBE के बाप भी OBE है, ओवर ब्लडी 80। हाँ लेकिन ऐसा है कि वो ब्लडी, हाँ लेकिन ऐसा है कि वो अपने आप को ब्लडी वो कहें जो एंजॉय ना करते हो। आप तो एंजॉय करते हैं, मैं तो इतना एंजॉय करता हूँ, पर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो हो गया। हाँ लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो जुमला जो है वो आयद नहीं होता। वो इसलिए कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे दोस्त मेरा ख्याल रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों का ख्याल रखता हूँ। यही तो मेन थिंग है कि आप जब ये कहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे हैं, तो इस बात की ज़मानत है कि आप बहुत अच्छे हैं। देखो जी, इनके जो बच्चे हैं जी, उन्होंने हमें सबको इनविटेशन भेजा, इनके जो फ्रेंड्स थे, कि भाई आइए हमने एक पार्टी देनी है मम्मी डैडी को, लेकिन मुझे नहीं पता। इट इज़ अ थैंक्स गिविंग पार्टी, अच्छा अच्छा, कि आपने हमें बड़े किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं हम, अच्छे हमारे परिवार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मुझे जेस्चर बहुत अच्छी लगी। कितनी अच्छी बात है, और इनका दिल कितना बड़ा होगा इस बात मुझे तो वैसे मैं तो वो जज्बाती होकर रोने लग गया था। जज यू डिड। हाँ, I started crying because when I saw a crowd of over 200 people in that hotel, so मैं हैरान कि ये क्या, और ये सब ये और उस कॉन्स्पिरेसी में ये भी शामिल थे। लिखी थी। अच्छा, हाँ, चलो अब तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, हम 7 बहनें और एक भाई थे, जिसमें से हमारी 2 बहनों का इंतकाल हो गया और एक भाई का भी इंतकाल हो गया। और 2 बहनें जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न में इंजीनियर हैं जी, और एक हेड टीचर हैं और एक हाउसवाइफ हैं। तो बस वो 4 बहनें वहाँ पर और 5वीं मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान आप, क्योंकि इस देश में ज़्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग विद माई सेल्फ, क्योंकि आई केम इन 1962, आप किस साल में आए मैं थे? तो 64 में आया था। 64 में। हाँ ये भी थोड़े नए हैं मेरे लिए। 2 साल नया हूँ। तो आप तो अभी आए हैं 1992 में, तो वापस जी, भी मैं पहले जाते? भी यहाँ पर थी, लेकिन 92 से फिर मैं मुस्तकिल यहाँ पर आ गई हूँ। अच्छा अच्छा, आपके पेरेंट्स यहाँ थे? जी नहीं, मेरी जो सास थी उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। हाँ उसके बाद फिर मैं दोबारा वापस यहाँ आ जी गई जी थी। जी। अच्छा, तो ये जहाँ का जो मुआशरा है इंग्लैंड का, क्योंकि मैं कनाडा गया था, वहाँ मैं यही सवाल उन लोगों से कर रहा था कि यहाँ आप रहते हो, इस माहौल के बारे में आप कभी लिखते हो या नहीं? मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो हर तरह का लिखती हूँ, मोहब्बत के बारे में, और मोहब्बत तो यूनिवर्सल है ना। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो दुश्वारियाँ आती हैं हमारे लोगों को, नस्ली दुश्वारियाँ होती हैं और कई किस्म की हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं। सब अब देखें कि ये मेरी किताब आ रही है, अगर आप 2 वीक के बाद मुझे यहाँ बुलाते तो ये बाकायदा एक किताब। चलो आपको फिर बुला लेंगे। हाँ, तो ये क्या बात किताब का जो है ना मुसव्वदा बिल्कुल तैयार है। क्या नाम है इसका? क्या नाम रखा किताब? नवाए फरहत। नवाए और नवाए ये फरहत, अच्छा। इसमें दुनिया का दुख भी है हाँ और जी। यहाँ का Very दुख भी good. है, वहाँ का दुख भी है। शायर लोग जो रहते हैं जी। वो सभी का लोगों का जो दुख है अपने में छुपाए रखते हैं। अच्छा, तो आप ये मैंने 83 में यहाँ पर नेल्सन में एक मुशायरा हुआ था 1983 में। हाँ 1983 में नेल्सन में मैंने ये एक मिसरा तरह दिया गया था मौज फराजी साहब की। जी, नेल्सन लंकाशायर में मेरे ख्याल में। जी वहीं पर, तो वहाँ पर ये मुशायरा हुआ था और वो उनकी याद में हुआ था। मौज फराजी साहब की बरसी थी और उन्हीं का मिसरा दिया गया था कि लाख आंसू पिए एक हंसी के लिए, वाह। मिसरा हो दिया गया था। तो उस पर ही मैंने वहाँ पर पढ़ी थी उस मुशायरे में, तरही मुशायरे में, कि मुस्तरिब कर दिया ज़िंदगी के लिए, मुस्तरिब कर दिया ज़िंदगी के लिए, बेवफा ने महज दिल लगी के लिए, बेवफा ने महज दिल लगी के लिए, जब अंधेरों ने मुझसे
तकाजा किया, जब अंधेरों ने मुझसे तकाजा किया, दिल जलाना पड़ा रोशनी के लिए। वाह वाह वाह, मान गए अंधेरों के तकाजे जब को। अंधेरों ने मुझसे तकाजा किया, दिल जलाना पड़ा रोशनी के लिए। ये भला सबके बस की कहाँ बात है, ये भला सबके बस की कहाँ बात है। खूने दिल चाहिए शायरी के लिए, वाह, खूने दिल चाहिए शायरी के लिए। वाह। ये भला सबके बस की कहाँ कहाँ बात बात है, है। खूने दिल चाहिए शायरी के लिए। और ये गिरहा मैंने लगाई थी कि एक तबस्सुम की कीमत जरा देखिए, एक तबस्सुम की कीमत जरा देखिए, लाख आंसू पिए एक हंसी के लिए। वाह, लाख आंसू पिए एक हंसी के लिए। और उनकी जो मौज फराजी साहब की मरहूम की जो बेगम वहाँ पर थी, उन्होंने कहा कि तुमने मुशायरा लूट लिया, क्योंकि इतनी हसीन गिरा किसी और ने नहीं लगाई जो तुमने लगाई। और तभी गज़ल जो है वो उन्होंने मुझे नंबर 1 करार दिया जी। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा जो प्रोग्राम है, it has been extended by 15 minutes. So today our program will end at 10:45. So stay tuned. तो बहुत अच्छी आपने नज़म लिखी है। 1983 में आप यहाँ थी, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ मूव होगी। जी बिल्कुल। तो लाहौर में आप ज़ाहिर तौर पर जैसे आपका जो सीवी है, जी जी बिल्कुल, लाहौर में मैं हेड टीचर थी। यू वर टीचर देयर, हेड टीचर एंड एवरीथिंग। यहाँ पहले तो आप इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज और उर्दू पढ़ाती रही जहाँ। जी जी बिल्कुल। तो आपने प्राइमरी स्कूल में फिर बाकायदा टीचिंग जी बाकायदा टीचिंग भी की है, जे.एंड.आई स्कूल में भी की है और सेकेंडरी स्कूल में भी की है। मुझे याद आ गया क्योंकि मैं भी थोड़ी देर के लिए जहाँ पढ़ाया स्कूलों में, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस वक्त पैसे बहुत कम होते थे और फैमिली हमारी यंग थी और हमने मॉर्गेज वगैरह भी देनी थी। सो आई डिवर्टेड टू अदर एरियाज। तो मेरी बीवी जो है उसने यहाँ शी इज़ टॉट अबाउट 25 years इन दिस कंट्री। सो ऐसे है आपको आती रही व्हेन यू वर टीचिंग हियर? नहीं, यहाँ नहीं मैं टीचर रहा, मैं वहाँ टीचर था। वहाँ क्योंकि आई वाज ए लैंग्वेज टीचर, तो हिंदी टीचर को यहाँ उस वक्त सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए फिर मुझे तो आप दूसरी जॉब में करना तो आपको कोई ऐसी बात जहाँ लगी जो आपको अच्छी ना लगी हो इन द स्कूल्स एंड एवरीथिंग? मुझे तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा है। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान में तो मैंने ये भी देखा था कि बच्चे जो हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो रट्टा लगा लेते हैं, तो और वो बहुत ही गलत बात होती है, उसमें कोई ज़हानत। और लेकिन यहाँ पर जो इनका एजुकेशनल करिकुलम है उसमें ये चीज़ है कि बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, उसकी ज़हानत को कुरेदा जाता है, उसको शामिल हाल रखा जाता है। यहाँ की तालीम में जो ये स्टूडेंट को शामिल करके किया जाता है, तो इस तरह से उनकी तवज्जो It is different approach. उनकी ज़हानत को उभारा It is different approach. As a matter of fact, when I came here, you know, I started attending these evening classes for BSc Economics. वहाँ भी करके आया था, जहाँ भी मैं करना। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि जो हमें वहाँ इकोनॉमिक्स टीच की गई थी, it was different here. Their approach was totally very सॉलिड है, यहाँ ज़्यादा सॉलिड है। यस। अच्छा, तो आप मुशायरे की तरफ आते हैं। हाँ अच्छा, हाँ तो मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। तो मतलब अर्ज़ किया है कि ख्वाबों में कोई सीमी बदन देखा है मैंने, ख्वाबों में कोई सीमी बदन देखा है मैंने, खुशबू से भरा दिल का चमन देखा है मैंने। और ये शेर अर्ज करता हूँ कि जब शेख व ब्राह्मण थे बने मेरे महाफिज, जब शेख व ब्राह्मण थे बने मेरे महाफिज, जो चारों तरफ बरसी अगन देखा है मैंने। ये 1947 की तरफ कि जब शेख व ब्राह्मण थे बने मेरे महाफिज, जो चारों तरफ बरसी अगन देखा है मैंने। दुनिया की रियाकारी के किस्सों का न पूछो, बिकते हैं शहीदों के कफन,